اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی خیر خلقہ الانبیاء والمرسلین اما بعد فقط. ناظرین کرام السلام علیکم. ہماری جو گفتگو ہے وہ گفتگو ہے طہارت کے حوالے سے، کیونکہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ بنا طہارت کے نماز ممکن نہیں ہے. ہم انشاءاللہ نماز کی بھی گفتگو کریں گے، باقی مسائل کو بھی زیر بحث لے کر آئیں گے، لیکن سب سے پہلے جو عمل ہے جس میں کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ جن کے صحیح ہونے کی شرط ہی طہارت ہے. یہاں طہارت سے مراد کپڑوں کا پاک کرنا نہیں ہے، وہ بھی ایک طہارت ہے، لیکن جو فقہ میں طہارت کا اطلاق ہوتا ہے وہ وضو، غسل اور تیمم پر ہوتا ہے. اور اب یہ مسئلہ بیان کریں گے وضو کا. وضو میں چند چیزیں واجب ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں مستحب ہیں. ہر وقت انسان باوضو رہے بہت اچھی عادت ہے، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے. روایتوں میں وارد ہے کہ اگر آپ وضو کر کے سوئیں گے تو اس طرح سے ہے کہ جس طرح سے آپ پوری رات مسجد میں بسر کر رہے ہیں اور سو رہے ہیں. اگر وہی بنا وضو آپ سو جائیں تو اس طرح سے احادیث میں وارد ہوا ہے جیسے آپ قبر میں سو رہے ہیں. بستر نہیں ہے آپ کا وہ، بلکہ آپ قبر میں لیٹے ہوئے ہیں. تو سوچے کہ وضو کی کتنی برکت ہے. وضو میں جو سب سے پہلا واجب ہوتا ہے وہ واجب ہے نیت. نیت کے حوالے سے لے کے آج بھی لوگوں کے درمیان غلط فہمی واقع ہے. عام طور پر نیت کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیت زبان سے ادا کرنا ہی نیت ہے. کیونکہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں مولانا میں نے نماز پڑھ لی لیکن نیت نہیں کی. رمضان کا مہینہ ابھی گزرا ہے، مولانا میں نے روزہ تو رکھا، سحری کھائی، لیکن روزے کی نیت نہیں کی. تو یاد رکھیں کہ نیت کوئی الگ سے واجب اس طرح کا نہیں ہے کہ جسے عملاً انجام دینا ہے، جیسے کہ ہم چہرہ دھل رہے ہیں، ہاتھوں کو دھل رہے ہیں، بلکہ نہیں. نیت سے مراد ہوتا ہے ارادے کا ہونا. آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کے ذہن میں کیا ہے. آپ جو عمل انجام دے رہے ہیں آیا وہ عمل صرف منہ دھل رہے ہیں، فیس واش کیا ہے آپ نے، صرف ہاتھوں کو دھلا ہے، جیسے بھی کورونا میں بار بار ہے کہ ہاتھوں کو دھلتے رہیے. تو آیا وہ آپ نے عمل انجام دیا ہے یا باقاعدہ عبادت کی غرض سے آپ نے اپنے ہاتھوں کو کلی کا کرنا، ناک میں پانی کا ڈالنا، چہرے کا دھلنا، دایاں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ پھر سر اور پیر کا مسح، اگر یہ عمل انجام دیا ہے اور یہ آپ نے نماز کے لیے کیا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے کیا ہے، تو یہی وضو ہے اور یہی نیت ہے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو عمل آپ کر رہے ہیں وہ کس لیے کر رہے ہیں. آیا نماز کے لیے کر رہے ہیں کہ وضو قرآن کے لیے کر رہے ہیں، یا ایسے ہی سونے کے لیے آپ صرف وضو میں حالت وضو میں رہنے کے لیے کر رہے ہیں. اگر اتنا علم آپ کو ہے تو وہی نیت ہے. یاد رکھیے گا، نیت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ نیت کریں کہ میں وضو کرتا ہوں نماز کے لیے واجب قربتاً اللہ، نہیں. بلکہ جب آپ وضو کر رہے ہوں یا وضو کر کے فارغ ہو جائیں، کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ نے ابھی کیا کیا ہے، تو آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ آپ نے جو کیا ہے وہی وضو ہے. تو نیت صرف اور صرف ارادے کا نام ہے، انٹینشن کا نام ہے، کہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ نے جو عمل انجام دیا ہے وہ کیا ہے. اچھا، جو میں نے کہا کہ واجب صرف چہرے کا دھلنا ہے،
दोनों हाथों का धुलना है, सर और पैर का मसा है। कहा जाता है गस्लतान व मसहतान, यानी गस्लतान चेहरे का धुलना, दोनों हाथों का धुलना, ये दो गुस्ल हो गए, दोनों को धुलना है आपको। और मसहतान यानी सर और पैर का मसा। तो इस तरह से हमारा वुजू करार पाता है। तो अमल के तौर पर अगर देखा जाए तो ये चार चीजें हमें वाजिब नजर आती हैं। हाँ, उसके अलावा जो वाजिब है वो है आपका नियत है, तरतीब है और मवालात है। तरतीब मवालात किसको कहते हैं? नियत तो मैंने आपको बता दी। तरतीब कहते हैं किसी चीज को सीरियल वाइज अंजाम देना, उसको तरतीब कहते हैं। मसलन जो वुजू की तरतीब बताई जाती है, यानी वाजिब का मैं जिक्र कर रहा हूं, मुस्तहब का भी मैं आपको बता देता हूं, और इसके जो तफसीली अहकाम हैं इंशाअल्लाह अगली क्लिप में आपको बता दिए जाएंगे कि इसके शुकूक हो जाए, किसी को शक हो जाए तो उसका क्या अमल अंजाम देंगे। लेकिन अभी जो मैं मसला जो हमारे ज़ेर बहस है हम उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि नीयत के अंदर तो हमने आपको बता दिया कि सिर्फ अगर हमारा इरादा है तो काफी है। तरतीब, जो वुजू की तरतीब बताई जाती है वो ये है कि चेहरे को पहले धुले, फिर दायां हाथ धुले, उसके बाद बायां हाथ धुले, और उसके बाद सर का मसा, अगले सर का, और दोनों पैरों का मसा कर ले। ये वुजू की तरतीब है। इसके अलावा एक मवालात होता है। देखें, मवालात कहते हैं किसी चीज को विदाउट गैप अंजाम देना, उनके बीच फासला ना हो। अच्छा, फासला कितना ना हो? फासला इतना नहीं होना चाहिए कि जो आपने पिछला अज़्व, पिछला पार्ट अपनी बॉडी का धुला है वो खुश्क हो जाए, सूख जाए। अगर सूख जा रहा है तो आपको फिर से वुजू करना होगा ताकि वो मवालात हासिल हो जाए। मसलन मिसाल के तौर पर मैंने चेहरे को धुल लिया, चेहरे को धुलने के बाद मैं दायां हाथ धुल रहा था कि मैं किसी से बातों में मसरूफ हो गया, मेरे पास फोन आया, मैं फोन पे लग गया, यहां तक कि जो मैंने चेहरा धुला था वो चेहरा खुश्क हो गया। ऐसी सूरत में मुझे अपना वुजू फिर से करना होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हाथ को धुल के और फिर बायां धुल ले, नहीं, हमें फिर से चेहरे को धुलना होगा, दायां हाथ और बायां हाथ को धुलना होगा, तब जाके हमारा वुजू सही रहेगा। तो ये जो हमारे 7 वाजिब होते हैं इस तरीके से कि चेहरे का धुलना 1, दायां और बायां हाथ 2, सर का मसा 3, पैर का मसा 4, और उसके अलावा नियत 5, और तरतीब 6, और मवालात 7। अब आते हैं मुस्तहब पे। मुस्तहब यह है, उससे पहले वाजिब शुरू होता है हमारा चेहरे से, मुस्तहब आता है कि हम पहले अपने हाथों को धुलेंगे गट्टे से, यहां से, ये याद रखिएगा, पहली बार गट्टे से हाथों को हमें धुल लेना है, ये अमल मुस्तहब है। उसके अलावा 3 मरतबा हमें कुल्ली करनी है, यह अमल भी मुस्तहब है। नहीं करेंगे तो कोई हरज नहीं है, लेकिन करना बेहतर है, याद रखिएगा। उसके अलावा 3 मरतबा नाक में इंसान का पानी डालना, ये 3 अमल मुस्तहब है। उसके अलावा जो और मुस्तहब है वो ये है कि जो कुछ धुलना है वो हम 2-2 मरतबा धुलें। चेहरे पे 2 मरतबा पानी डालें और उसको धुलें, हाथ पे हाथ को 2 मरतबा धुलें, बायां हाथ को भी 2 मरतबा धुलें। तो जो धुलना है उसको डबल डबल धुलें, मुस्तहब है। और ये अमल मैंने जो बताया ये अमल मुस्तहब है। उसके अलावा उस वक्त वुजू की दुआओं का पढ़ना, ये अमल भी मुस्तहब है। उस वक्त आप सूरह इन्ना अंज़लना की तिलावत करें। रिवायतों में मिलता है कि अगर कोई वुजू करते वक्त सूरह इन्ना अंज़लना की तिलावत करे तो उसके खुदावंद आलम उसके गुनाहों को बख्श देता है। यानी कितना छोटा सा अमल है, क्या हम ये नहीं कर सकते? अल्लाह की रहमत हमारे शामिल हाल होगी। अब देखें
चेहरा कितना धुला जाए। तो याद रखें अजीजों कि चेहरा जब हमें धुलना है तो चेहरे को ये जो बाल उग रहा है, ये मैं थोड़ा मामा हटा के मैं आपको बता दूं, ये देखिए, ये बाल उगने की जो जगह है, हमें अगर आपने अंगूठी पहनी है तो अंगूठी उतारने की जरूरत नहीं है। आप पानी लीजिए और पानी लेने के बाद पानी हम यहां नहीं डालेंगे, इस चीज का ख्याल रखिए। ये मैं बता देता हूं आपको, फिर से ये चश्मा मैं उतारता हूं कि पानी जब आप लेंगे तो पानी आप ऊपरी सिरे में डालें, यहां पे। अगर आप यहां डालते हैं और यहां से आप हाथों को धुलने और धुलते हुए इस तरह से लेके आते हैं, तो बताऊं मैं क्या गलती आपने कर दी इसमें आपने गलती ये की कि पानी यहां डाला और यहां से आप जब हाथ ऐसे आपने चलाया तो हाथ नीचे से ऊपर की तरफ चला। और याद रखिएगा, नीचे से ऊपर की तरफ हाथ चलने से वुजू सही नहीं होगा। हमारा हाथ ऊपर से, आप यहां पानी डालें और ऊपर से लेकर नीचे तक हमारा हाथ ऐसे आना चाहिए। और अंगूठे और ये दरमियानी उंगली के दरमियान जितना हिस्सा हमारा आ रहा है उतना धुलना वाजिब। और जो वाजिब हमारा अदा हो गया उसको यकीन दहानी के लिए हम उसको मुकद्दमे इल्मिया कहते हैं। हम ये यकीन हासिल हो जाए कि जितना वाजिब था उतना धुल चुका है, हम साइडों में ऐसे हाथ फेर देना हमें चाहिए। हाँ, याद रहे, हाथ ऊपर से नीचे ही आना चाहिए, नीचे से ऊपर की तरफ ना जाए। आंखों पे, चूंकि यह अंदर होती हैं आंखें, हो सकता है कि हमारा हाथ पानी वहां तक ना पहुंच रहा हो, तो हाथों से इस तरह से आप मस करिए, नीचे की तरफ लाइए, इस तरह से, ऐसे और ऐसे। नाक का ये हिस्सा है, यहां पानी नहीं पहुंचता है, कभी कभी यहां कुछ ना कुछ इस तरह की चीज लगी रहती है, तो आप नाक को ऐसे कर दीजिए इस तरह से, ताकि बाकायदा पानी पहुंच जाए। जब आपने चेहरे को धुल लिया है, एक मरतबा आपने धुला, दोबारा पानी लीजिए और दोबारा भी इसी तरह से धुलिए। फिर उसके बाद देखिए, ये मैं एक हाथ का बताऊंगा कि हमने पानी लिया, और पानी का याद रखिए, पानी दाएं हाथ में लेना मुस्तहब है कि पानी को दाएं हाथ से लें, दाएं हाथ से लेके बाएं में लें, और बाएं में लेके आप, ये मर्द है तो मर्द के लिए मुस्तहब है कि वो पुश्त पे डालें। पहली मर्तबा मर्द के लिए पुश्त पे, यहां पे ऊपर आपको डालना है। ये जो आपके कोहनी दिख रही है, इससे, यानी एल्बो जिसको इंग्लिश में कहते हैं, एल्बो के ऊपर आप लें और पानी डाल के आप बाकायदा, हाँ इस चीज का ख्याल रखिए, मैं बता दे रहा हूं अभी फिर से, ये ऐसे लेके आएंगे। ऐसा ना हो कि आप ये तसव्वुर करें कि मैंने अभी मुस्तहब तो ये हाथ धुला था, और जब हाथ धुलते हुए आप आए तो सिर्फ यहीं तक रह जाए, नहीं, बल्कि आपको अंगुलियों के सिरे तक धुलना है। तो पहली बार तो आपने यहां पानी डाला और पानी डाल के ऐसे लेके आए। हाँ, याद रखिए, पानी आप कई मर्तबा डाल सकते हैं, पहली मर्तबा की नियत से। पानी डालना मुराद नहीं है, उसको कई मर्तबा धुलना नहीं। एक मर्तबा आपने एक चुल्लू पानी डाला, एक चुल्लू और लेके डाल दीजिए, एक और लेके डाल दीजिए, कोई हर्ज नहीं है। पहली मर्तबा की नियत से आप इस तरह से हाथों को धुलेंगे। ये जो बीच की उंगलियां हैं उनमें ऐसे नहीं फेरेंगे, याद रखिएगा, इस तरह से ले जाएंगे ताकि दरमियान में जहां पानी ना पहुंच रहा हो पहुंच जाए। ये अंगूठी हमारे पास है, अंगूठी उतारने की जरूरत नहीं है, इसको आगे पीछे ना करें। ये देखिए, इसको आगे पीछे ना करें, आगे पीछे करेंगे तो जैसा मैंने कहा कि अक्स लाजिम आ जाएगा, अक्स यानी उल्टा वजू लाजिम आएगा, तो वो ना करें, बल्कि इस अंगूठी को आप ऐसे राउंड में घुमा देंगे, काफी है, ताकि अगर इसके उसमें पानी न गया हो तो वो भी पानी पहुंच जाए, उतारना जरूरी नहीं है। और इसी तरह से आप बायां हाथ धुलेंगे। औरत अगर है ना, तो औरत को पहली मर्तबा अंदर पानी डालना है और दूसरी मर्तबा बाहर की तरफ। आप अगर चुल्लू में पानी नहीं लेना चाहते हैं, चुल्लू में अगर आप पानी नहीं लेना चाह रहे हैं, तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप
बाकायदा नल को खोलिए और नल को खोलने के बाद आप अपनी कोहनी को नल के नीचे ले जाइए और जो तरतीब है, हमें ये उंगलियों की तरफ से नहीं कर सकते ऐसे, बल्कि उसी तरतीब से कि कोहनी को हम पहले रखेंगे और ऐसे निकाल लेंगे और निकालने के बाद उसके बाद हाथ आप फेर दीजिए। ये एक मर्तबा आपका हो जाएगा और दो उसी मर्तबा भी इसी तरह से कर लीजिए। फिर सर का मसा आता है, तो सर के मसे में देखिए मैं आपको बता दूं, बाल छोटे होने चाहिए, बाल बहुत ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, तो आप बालों पे नहीं कर सकते। याद रखिएगा, बाल पे तब तक मसा कर सकते हैं कि जब बाल अपने हद से ज्यादा, यानी एक हिस्से का बाल दूसरे हिस्से पे ना आ रहा हो। हमें जब मसा करना है तो सर के जो अगला एक सर को 4 हिस्सों में आप तकसीम करें, अगला जो 1/4 उसका हिस्सा है हमें उसमें मसा करना है। बाल अगर छोटे हैं तो कोई हरज नहीं है, जैसे ये हमारे बाल हैं, हम बालों पे मसा कर सकते हैं। मसा बेहतर है कि आप ये उंगलियां लें और इस तरह से कीजिए, ऐसे। याद रखें कि ये जो मांग है, इस मांग से हमें मसे को नहीं मिलाना है, बहुत पीछे से लेकर नहीं आना है, नहीं आना है, याद रखिएगा। सिवाय वो लोग कि जिनके बाल नहीं हैं, जो लोग टकले हो चुके हैं या टकला करवा रखा है, तो ऐसा ना हो कि पीछे से लेके ऐसे आए, नहीं नहीं, पीछे से नहीं, बल्कि जो अगला हिस्सा में वहीं से शुरू करना, ये याद देख लीजिएगा। और यहां से हमें इस तरह से लेके आएंगे, इस तरह से भी कर सकते हैं। जितनी उंगली खींचेंगे, सिर्फ उंगलियों का रखना काफी नहीं है। हाँ, एक बात और याद रखिए कि हमारा मासह जो है वो हाथ है, हाथ हिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम हाथ को एक जगह रखें और सर को ऐसे करते हैं, तब भी हमारा वुजू सही नहीं होगा। हाँ, अब एक चीज और बता दें कि जब आप वुजू कर रहे हो, जैसे नल से आप वुजू कर रहे हैं, आपने बायां हाथ धुला, बाएं के लिए पानी ले लिया, एक मर्तबा लिया, दोबारा पानी लिया, लेकिन नल को बंद कर दें और उसके बाद, नल को बंद करने के बाद आप हाथ फेरें और उसके बाद वुजू करें। और उसका रीजन ये है क्योंकि सर का मसा आप नए पानी से नहीं कर सकते, जो वुजू का पानी है हमें उसी से मसा करना है। तो इस तरीके से अगर आप पूरा हाथ फेरने के बाद अगर आप नल को बंद करेंगे और फिर मसा करेंगे, तो हो सकता है जो नल के ऊपरी हिस्से पे पानी हो उसकी तरी आपके हाथों पर आ जाए और आप उससे मसा करें, तो उससे आपका वुजू सही नहीं होगा। इस चीज को याद रखिएगा। और फिर वुजू सही नहीं होगा तो जाहिर है जब वुजू सही नहीं है तो नमाज भी आपकी सही नहीं होगी। तो जब आप सर का मसा कर लेंगे तो सर के मसे के बाद पैर का मसा उंगलियों के सिरे से, बेहतर है कि आप जो पैर की उंगलियां हैं, ये ले मैं जरा बता ही देता हूं। ये टेबल है, ये देखिए, ये मैंने पैर लिया और पैर लेने के बाद अपने हाथों को हम ऐसे रखेंगे और इस तरह से यहां लेकर आएंगे। तो अगर आप इस तरह से मसा कर रहे हैं तो सही है। ये काम आप नहीं कर सकते कि आप हाथ को रख के अपना पैर खींचें, वो मैंने कहा कि सही नहीं होगा, वुजू बातिल हो जाएगा। तो आप जो है अपने वुजू को अंजाम दे सकते हैं। दोनों पैरों को एक साथ ना करें मसा, दाएं हाथ से दाएं पैर का मसा करें, बाएं हाथ से बाएं पैर का मसा करें। हाँ, अब ये याद रखिएगा कि वुजू से कबल जो आपके आज़ाए वुजू हैं, आज़ाए मसा हैं, ये सब पाक होने चाहिए, इसमें कोई माने न हो पानी पहुंचने के। वो इंशाअल्लाह ये सारी बातें मैं अगली क्लिप में आपको बताऊंगा। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।